ਵਿਖੇ ਜੈਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਪੁਰੀ ਤੇ ਐਸਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਡ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਿਖਿਲ ਪੁਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਈ ਆਈਕਨ ਗਰੁੱਪ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਡ ਐਸਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੋਹਾਲੀ। ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਮਡੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਹੋ ਹਾਊਸਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਐਸਪੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਮ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ मीडियम फैमिलीज किस तरीके नाल तुहाडे नाल अप्रोच कर सकन? थैंक यू सर। हमारी कंपनी की विजन है कि अपकमिंग ईयर्स में कमर्शियल मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है, कॉज हाउसिंग मार्केट भी बड़ी हो रही है। देयर इज़ इमिग्रेशन फ्रॉम ऑल अक्रॉस हिमाचल, हरियाणा। तो ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि कमर्शियल मार्केट अपकमिंग एरिया में बहुत ज़रूरी होगी। कंपनीज आ रही हैं बाहर से। So our vision is to bring a project to the city which is going to be different, which is going to be innovative, and which is also going to run for decades to come. निखिल जी, आप मोहाली शहर के सेंटर में हैं। बिल्कुल आपका जो प्रोजेक्ट है डाउनटाउन, वो मोहाली शहर का जो सेंटर है उसके बीच में बना हुआ है। तो आप वहाँ पे लोगों के लिए कि शहर के जो लोग हैं या बाहर से लोग अट्रैक्टिव हों, वो किस लिए उसमें क्या क्या उसमें किया जा रहा है? सर, लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट की तो मैं कहूँगा अपने आप में इज़ अ जेम ऑफ पंजाब। So we are working with the best mall operators. We are working with experts in this industry to bring the best product mix that the Tri-City has not seen before. We are bringing hospitality, retail, food and beverages from all across, hand-picked, which has not touched Chandigarh or Tri-City before. So we are bringing an innovation in an already saturated commercial market. रमन जी, आपसे सवाल था कि जब आपने काम शुरू किया मोहाली में, तो उस टाइम जो मोहाली ग्रो कर रहा था, आज मोहाली एक विश्व स्तरीय शहर बन गया है। तो उसको लेकर आप कैसे चैलेंज सोच रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, या आने वाले टाइम में जो शहर है ये कहाँ तक जाएगा? और सर, बिल्कुल ठीक कहा। जब मोहाली शहर जो है इसको पंजाब का ग्रोथ इंजन माना जाता है। पर मोहाली शहर जो बसा था 1966-1967 में, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में बसाने को इसका जो था विज़न था गवर्नमेंट का। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पे इंडस्ट्री उस तरीके से फ्लोरिश नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये शहर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं,
हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और नई यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी आ रही हैं। सो यहाँ पे जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ सरकार इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं और लेके आए तो उससे इस शहर के विकास में बहुत योगदान मिलेगा। जैसे कि हाउसिंग के अंदर अभी सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं कि यहाँ पे अभी एट्रोपोलिस है, वो आने वाला है, एक दैट्स अ वेरी मेगा प्रोजेक्ट। एंड इसके साथ इको सिटी फेज़ 3 आने जा रहा है। 101 सेक्टर के अंदर 500 एकड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने वाली है। सो ये बहुत ही बड़ी यूनिक गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। ਰਮਨ ਜੀ ਇਕੋ ਸਿਟੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਉਚਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ ਡਾਊਨ ਸਿਟੀ ਦੀ? सर आप ही के एक इवेंट के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो हमारे मिनिस्टर थे अमन अरोड़ा जी, उनको बोलते हुए सुना था। मैं उन्हीं की बात को यहाँ पे दोबारा कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कहा था कि क्यों हम अपने शहर को दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करना चाहते हैं। उनका तो ये विज़न था कि जो सरकार का ये विज़न है कि हम इसको वर्ल्ड के रिनॉन्ड शहरों की तरफ क्यों नहीं देख रहे इसको, कि हम उस तरह की फैसिलिटीज़ लेके आएँ जो कि किसी भी शहर के अंदर बेस्ट है, कि बेस्ट ऑफ एवरीवेयर फैसिलिटीज़ एंड चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएँ। सो मैं इसी की तरफ आपको कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के साथ लगते हुए जो शहर हैं, जैसे हमारा मोहाली है, यहाँ पे हमारे पास लैंड बैंक बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो सकता है एंड गवर्नमेंट भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। जैसे कि जो मेरी नॉलेज में है कि 5 ग्रीनफील्ड हाईवेज़ अभी हमारे जो इस शहर को टच कर रहे हैं, जो अभी इन प्रोसेस हैं बनने के लिए। जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती रहेगी उसी तरीके से जो हमारा ये शहर है उस तरीके से विकास की रफ्तार को पकड़ता रहेगा। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से इस शहर को बाय 2050 इस शहर की जो पॉपुलेशन है, जो अनुमानित पॉपुलेशन है, मेरे हिसाब से 70 से 75 लाख की आबादी हो जाएगी। उस तरीके से यहाँ पे हाउसिंग एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिजनेस को यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो होना ही होना है। निखिल जी, आपका प्रोजेक्ट जो है टोटली कमर्शियल है, तो जैसे इन्होंने बात की कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो मोहाली के लिए कैसे उसको आगे ले जाने में मदद करेगा, और इसमें आप क्या क्या खास चीज़ दे रहे हैं जो कमर्शियल आपकी जो जितनी भी साइट्स हैं वो कमर्शियल है टोटली? सर आने वाले टाइम में जो हमें दिखता है, हिमाचल और हरियाणा से हमारे पास यहाँ बहुत लोग आते हैं। अपकमिंग टाइम में हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। सो विद गोइंग फ्रॉम अ टियर 2 सिटी टू अ टियर 1 सिटी इन द नेक्स्ट डेकेड, वी थिंक कमर्शियल प्रॉपर्टी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने वाली है। विद जैसे रमन जी ने कहा, हमारे पास लैंड बैंक बहुत है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कंपनीज एंड MNCs आर मूविंग टूवर्ड्स पंजाब, बीइंग कि ये हिमाचल और हरियाणा के लिए हब है। यहाँ पे लोग आके इंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपना वीकेंड मनाते हैं। तो उसी चीज़ को थॉट में रखते हुए हम अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एक्सपीरियंस लाना चाह रहे हैं सारी फैमिलीज़ के लिए। वी वांट टू केटर अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स टू अ पर्सन ऑफ 60 ईयर्स। उन सब के लिए एक ही हब के अंदर सारी अमेनिटीज, सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस हम अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी में देना चाहते हैं। बीइंग इट अ मिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, फूड एंड एक्सपीरियंसेस इन एंटरटेनमेंट। रमन जी, एक बात देखने में आ रही कि जब अभी जो पहले काम था तो शहर में जो हाउसेस थे वो कुछ बिल्डर जो लाते थे वो एक सोसाइटी लाते थे, मगर अब हाई राइजिंग बिल्डिंग का जो दौर है वो मोहाली में शुरू हुआ है, वो पिछले तकरीबन 5 साल से चल रहा है, वो ये आगे भी जा रहा है अभी 40-50 मंजिल तक। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा है तो अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ अब हमारा जो है रुझान बढ़ रहा है। जैसे जैसे अब लोग भी बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। सो ये मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि अभी गमाडा की तरफ से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक 42 स्टोरी बिल्डिंग की भी अप्रूवल दी गई है। एंड ये इस तरह की बिल्डिंग्स आने से जो स्काई स्क्रैपर हैं ये अपने एक शहर का नक्शा ही बदल देंगे। एसपीपी ग्रुप ने अभी तक 14 से 15 स्टोरी बिल्डिंग्स अभी डिलीवर की थी। अभी हम भी खरड़ के अंदर 30 स्टोरी बिल्डिंग लेके आ रहे हैं जी। सो ये एक बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो हमें इस तरह की अप्रूवल्स मिल रही हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਆਪਕੀ? प्रेजेंटली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द रेजिडेंशियल पार्ट। हमारा कमर्शियल पार्ट हमें लगता है कि प्लेज अ बिगर रोल व्हेन रेजिडेंशियल इज़ ऑल फुल, ऑल फिल्ड अप। हमारे पास पॉपुलेशन है, वहाँ पे जॉब्स नहीं आ रही हैं, एमएनसीज आ रही हैं जैसे हमने पहले कहा। तो आई थिंक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन इट सेल्फ इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन द सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलता है। हम अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करें डाउनटाउन मोहाली की, हमारे पास आर्किटेक्चर है वो हमारा नया है, क्लासिकल और मॉडर्न का मिक्सचर। हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। हमारी जो साइट है वो 3 साइड ओपन, सेंटर ऑफ द हार्ट, ऑलरेडी रनिंग मार्केट में है, फेज़ 7 फेज़ 8। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि कमर्शियल मार्केट में ग्रोथ भी है, इन्वेस्टमेंट की भी ग्रोथ है, पर्सन की भी ग्रोथ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल ट्राई सिटी की भी ग्रोथ है। रमन जी, एक मेरा सवाल था कि जब जो भी आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट आते हैं या मोहाली का गमाडा का आता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी, पीने के पानी की, और जो सीवर सिस्टम है या ड्रेन सिस्टम है। तो आज मंत्री जी बैठे हैं जिम्पा साहब, अगर आपको लगता है कोई बात उन तक पहुँचानी तो बता सकते हैं उनको भी। सर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो जितना भी हम काम करें उतना बहुत अच्छा है। सरकार डेफिनेटली काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन अभी हमें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है ताकि जो बेसिक सहूलतें हैं उनको बेटर किया जा सके। अगर जैसे अभी बारिशों का मौसम था तो मैं मंत्री साहब से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, वीआईपी रोड है, ये कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4-4 फुट 5-5 फुट पानी हो जाता है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहायता मिलेगी, तो हम भी डेवलपमेंट को उसी तरीके से कर पाएंगे एंड लोगों को एक बेहतर जगह मिलेगी उनके रहने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। वाटर लॉगिंग को आप किसका कारण मानते हैं कि पाइपलाइन ठीक नहीं है या उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है? सर, जो भी कोई शहर बनता है वो अगले 40 से 50 साल 100 साल के विज़न के साथ बनता है। जितनी भी प्लान डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर तो जो नए इलाके हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, लेकिन जहाँ पे प्लान डेवलपमेंट नहीं हुई है तो वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसका कारण बने हुए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ प्रोजेक्ट मांगता है? गवर्नमेंट की तरफ आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में मोहाली वॉज लैकिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट रिसेंटली मोहाली ने डेवलपमेंट बहुत दिखाई है। हमारी रोड्स बेटर हुई हैं, वाटर सिस्टम बेटर हो रहा है। इन सारी चीज़ों को रखते हुए कमर्शियल में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, जिसमें आई थिंक गवर्नमेंट कैन बी मोर एक्टिव इन हाउ द होल सिटी इज़ कनेक्टेड, चंडीगढ़ टू मोहाली, मोहाली टू खरड़। और यही कनेक्टिविटी अट्रैक्ट करता है और लोगों को आके ट्राई सिटी में वर्क करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट बनने के लिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बना है। कंपनीज लाइक एसबीपी, रियल एस्टेट में, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, ऑल दीज कंपनीज वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अप। स्काई स्क्रैपर्स की बात हो रही थी, तो ऐसे सिर्फ हम एक तरफ नहीं कह सकते कि टू ब्रिंग मोहाली टू अ स्टैंडर्ड वेयर वी से कि हम इसको टियर 2 सिटी से टियर 1 सिटी ले जाएंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले करे। आई थिंक प्राइवेट बिल्डर्स एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर टू ब्रिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਪੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
डेफिनेटली जी, जैसे कि अभी NHAI भी अपने रोड्स को, जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है। मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया कि मेरी नॉलेज के मुताबिक 5 ग्रीनफील्ड हाईवेज़ अभी जो हैं ट्राई सिटी को टच करेंगे, जो नए अभी इन प्रोसेस हैं। जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जो हाईवे है, ग्रीनफील्ड हाईवे, ये बन रहा है। सो अभी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अभी एक नई रोड के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसका नाम है बनूड़ तेपला रोड। वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। SPP ग्रुप भी एक अपना नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लान कर रहा है। अगर वहाँ की रोड्स जल्दी वाइडन हो जाती हैं, जैसे उसका प्लान है कि वो 200 फीट हाईवे उसने बनना है, एंड वो अंबाला के बिल्कुल नज़दीक है, शंभू बैरियर के बिल्कुल टच पॉइंट है। सो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो पंजाब के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री आएगी तो उसको बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। जो आज वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने से उनको प्रमोशन मिलेगा उस लोकेशन को। बहुत शुक्रिया रमन जी, निखिल जी। सो समाप्ति करते हैं। सो ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SPP ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।